Good morning, everyone. In last class, we have studied about purely capacitive circuit and have seen one numerical related to that capacitive and inductive circuit. Today, we are going to start the circuits containing combinations of resistance and inductance and capacitance. Means this AC circuit containing resistor plus inductor, or the circuit containing resistor or capacitor, and some more topics. So we are starting by considering an AC circuit with resistance and inductance in series. So consider a resistor R and inductance L connected in series to a source of alternating EMF E, given by E is equals to E naught sine omega t. We have a circuit of having resistance R and inductance L. Inductance is nothing but a solenoid wire or a choke coil. It is connected in series with an AC source E naught sine omega t. As we know, just potential difference is provided by this E naught sine omega t at this point. So the potential drop across R will be different to potential drop across L. So considering the potential drop across R at any instant is VR, and it is what? The current. If I say at any instant, if at any instant current I is flowing in this circuit, so this will be R into I between the potential drop across R. So the potential drop across L will be V. If I say VL, it is current multiplied by the resistance offered by this inductor. But we have studied that it is the inductive reactance which is offered by the inductor, and it is represented by XL. So in place of resistance, we will place XL and multiplied by this current, XLI. So no doubt it is clear. Now, as we know, the potential drop, as we know from our previous class, that potential drop across R in a purely resistive circuit, VR and I in same phase. हमने पढ़ा था अपने फेजर डायग्राम में, अगर केवल रेजिस्टिव सर्किट हो तो पोटेंशियल जो होता है वो करंट के साथ इन फेज होता है. और हमने ये भी पढ़ा था फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट फॉर दिस मंथ, द current lags behind the EMF with angle pi by 2. Alright, current lags behind the voltage with angle pi by 2. So for a symbolic phasor diagram, I am making it for VR और I दोनों सेम फेज पे होंगे. सेम फेज मतलब उनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों को एक डायरेक्शन में दिखाया फेजर डायग्राम से. आई एम अगेन मेकिंग अ फेजर डायग्राम ऑल्सो, बट फॉर सिम्बॉलिकल representation we can write like this. And we know if current is in this direction, then for inductor drop VL, drop across inductor, it is current lags behind the inductor. लैगिंग के लिए हम क्लॉकवाइज मूव कराते हैं करंट को, लीडिंग के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्योंकि हमारा जो फेजर होता है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. तो दिस विल बी द VL and their angle will be 90 degree. Their difference angle or the phase angle will be this much. So I am putting it collectively
इन अ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा इजी हो जाएगा समझना। हम इसको पूरे क्वेश्चन को ही फेजर डायग्राम से सॉल्व कर देंगे। देखिए, फॉर फेजर डायग्राम आई एम मेकिंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस x and y. For making this combination of phasor diagram, we have a trick. We will use current in place of voltage first. देखिए, हमें समझने के लिए बस, बाकी हमें तो पता है कि पहले EMF आएगा तब करंट आएगा, बट चूंकि हमें डायरेक्शंस नहीं पता हैं तो बेटर यही होगा कि हम सबसे पहले करंट बना लें। करंट के लेंथ थोड़ी छोटी रखनी है फेजर की। इफ दिस इज द करंट इन द सर्किट, दिस इज, आपको पता है दिस लेंथ मैग्नीट्यूड इज शोइंग एक्चुअली I नॉट द करंट पीक। लिखा होता है बुक्स में I, बट इट इज I नॉट। I क्या होता है, जब इसका हम इस y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, दैट इज I, सो इट इज I नॉट। अब देखिए वन बाय वन, VR मस्ट बी इन फेज विद I। तो VR किस डायरेक्शन में दिखाना है, I की डायरेक्शन में, तो VR इसी डायरेक्शन में, थोड़ा सा इससे लेंथ बड़ा, इट इज VR, बट इट इज एक्चुअली VR, दिस लेंथ इज एक्चुअली पीक, सो इट इज V नॉट R। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस, पीक वैल्यू फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ऑलराइट, V नॉट नीचे और R ऊपर, ये पावर नहीं है, इट इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन। Now as we know, the current and the potential makes 90-degree angle in purely inductive circuit. So for any inductive circuit, the angle will be 90 degree. देखिए इंडक्टिव सर्किट में कैसा दिखाया, 90 डिग्री में, थोड़ा सा ये I नॉट से लेंथ में बड़ा होना चाहिए। दिस इज VL आगे, I नॉट पीछे, दिस इज एक्चुअली V नॉट L द पीक वैल्यू। बाकी सारी वैल्यूज को मैं अभी बना देता हूँ। ये जो कॉन्साइड कर रही है ये वाली, दिस विल बी I, दिस विल बी, ये जो प्रोजेक्शन इस पे होगा ये होगा VL, ये वाला प्रोजेक्शन जो VR से आएगा इस पे ये होगा VR, है ना। और VR और V नॉट R में अब आप अंतर समझ पा रहे हैं, इट इज़ द पीक वैल्यू एंड इट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नाउ as we know, this angle is 90 degree because current lags with voltage in a purely resistive circuit. तो ये हम L के लिए दिखा रहे हैं, ये वाला। Now the resultant or the applied EMF, as we know, the total potential, total EMF applied is distributed in VR and VL. Alright, so the total potential will be the resultant of V naught R and V naught L, and this will be the total potential peak. This from parallelogram law, this will be the direction of E naught. So the projection of E naught at the y axis will be this one, and this is what E, instantaneous E। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने करंट से शुरुआत क्यों की थी। Now the angles, करंट कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए जैसे देखिए हमें ई नॉट का एंगल कितना लेना रहता है, ई नॉट का हमेशा ओमेगा टी लेना रहता है, तो सबसे बड़ा वाला ओमेगा टी ले लीजिए सबसे पहले। अब हमने ये माना कि ईएमएफ और करंट के बीच में एंगल फाई है, तो करंट वाली ये एक्सिस, ये फेजर है और ये वाला फेजर इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का इट इज फाई। वी हैव कंसिडर्ड द phase difference between current and EMF is phi. All right, now this whole is omega t and this much is phi, so this remaining will be how much, omega t minus phi। ये होगा, इसका मतलब I का, करंट का x एक्सिस से एंगल कितना होगा, ओमेगा टी माइनस फाई। और ये पूरा वाला तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता है ये π/2 है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं, हमें करंट का चाहिए ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो ये एक्सिस मिल गया। नाउ अप्लाइंग मैथमेटिक्स हियर, ऑलराइट, तो दिस इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वेशन 1।
अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वन इज एज V naught R the peak value of voltage in purely resistive circuit, this will be equals to I naught the peak value of current multiplied by the R. ये पीक वैल्यू को लेके चल रहे हैं हम। मैं साथ साथ में इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दिस इज पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। एंड सेकेंड, वी नॉट एल इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल, है ना, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। So this is peak value or amplitude for XL or the inductor. So the by parallelogram law, of vectors, यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। ये E नॉट है, ये V नॉट है, V नॉट R है और ये V नॉट L है। तो E naught square will be equals to V naught R का स्क्वायर प्लस V naught L का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है इसलिए कोसाइन वाला टर्म नहीं लिया है। VR प्लस VL जो वेक्टर्स हैं उनका वेक्टर सम ही मैंने वहाँ पे लिखा है, E वेक्टर। ये देखिए, या तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में शो करें या तो इसको हम अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में शो करेंगे। वी नो VR एंड VL has their angle 90 degree, that is why I am putting only this one, वरना क्या होता है a square plus b square plus 2ab cos theta cos 90, so it is only the square terms. Now put the values, I naught r whole square, peak values के फॉर्म में रखना है इसलिए peak current यूज कर रहे हैं। I naught xl whole square, so this is equals to I naught square r square plus xl square. This is the expression for E naught square. So I naught will be equals to, I naught केवल लें, रूट ले लें, E naught अपॉन दिस, इसका तो रूट आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देखिए रूट लिया है फिर डिवाइड किया है। दिस इज इक्वेशन 2 if I say. Now this is what, this is the peak value of the current. Now I am writing what is R square plus X square root over I naught is equals to E naught by R square plus XL square. As you know, this R square plus XL square will be some kind of resistance. R square plus XL square is some kind of resistance, is the effective resistance. इसका क्या नाम देते हैं? Effective resistance. इसको एक नाम और देते हैं, it is called impedance. ऑलराइट, और इसको डिनोट किससे कहते हैं? Z से, क्योंकि ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, XL R स्क्वायर प्लस XL होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL की जगह ओमेगा L लिख दें तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज एज XL is equals to omega L. One more thing is there, its unit is ohm, क्योंकि ये भी वही है रेजिस्टेंस। एंड फेज, अगर हमें वो जो फाई मैंने बताया था ग्राफ में वो निकालना, यानी करंट का फेज एंगल निकालना हो, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था, आपको अगर याद हो तो tan फाई विल बी, आसानी से यहाँ से हम देख सकते हैं tan फाई यानी ये वाले एंगल का फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही परपेंडिकुलर है यानी वी नॉट एल अपॉन बेस वी नॉट आर। तो यहाँ लिख देंगे वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, इट इज इक्वल्स टू, ये सफिक्स हैं केवल,
ठीक है ना, ये कोई पावर नहीं है। सो आई नॉट एक्सएल ऊपर और आई नॉट आर नीचे, तो एक्सएल बाई आर, और वी कैन से tan phi is equals to एक्सएल की जगह ओमेगा एल बाई आर. दिस इज द एक्सप्रेशन. ऑल राइट, नाउ if it is obvious from the phasor diagram that the current lags behind the EMF by phase angle phi, so the instantaneous current कैसे रिप्रेजेंट होगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन. अब यहाँ देखो 90 डिग्री का नहीं, यहाँ फेज एंगल फाई का है, साइन ओमेगा टी, लेकिन रिजल्टेंट करंट जो है वो पीछे रह जा रही है, तो माइनस फाई. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट ऑल्सो. ऑलराइट, सो दिस इज when resistance and inductance are connected in series. Now we will see how current conductor and resistance is connected in series, means R and C. Now next is resistance and capacitor is connected in series. So we will do it similarly as we have done in previous topic, means previous derivation. This is a circuit having resistance and capacitance in series connected with an AC source. All right, this is E naught sin omega t. This has R and this has capacitance C. The potential drop across this will be V. अगेन आई एम सेइंग वी आर इज इक्वल्स टू आर आई. देखिए ये इंस्टेंटेनियस है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे करंट आई फ्लो कर रही है, देन ये होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी विल बी वी सी इज इक्वल्स टू एक्स सी आई, वेयर एक्स इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा था, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर. अब आपको याद हो कि कैपेसिटेंस में करंट वोल्टेज से आगे रहती है फेज एंगल पाई बाई 2 से, तो आर के लिए जो बनेगा वो तो सीधे सीधे दोनों ही फेजर्स एक डायरेक्शन में रहेंगे, वी आर और आई के. लेकिन इसमें क्या होगा, करंट से आगे, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, यानी लैगिंग दिखानी है वोल्टेज की. लैग जिसको दिखाते हैं उसको क्लॉकवाइज नीचे लेते हैं, तो नीचे कौन जाएगा, वी सी. करंट आगे है ना, तो करंट क्लॉकवाइज में आगे. सो इट इज, एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी पाई बाई 2 फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. नाउ फॉर सॉल्यूशन we will do as VR. देखिए VR वेक्टर है, ठीक है ना, इट इज इक्वल्स टू आर आई, बट द पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड V नॉट आर, इट इज इक्वल्स टू करंट का पीक यूज कर लो और रेजिस्टेंस यूज कर लो. इट इज इक्वेशन 1 फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. और अगर प्योरली कैपेसिटिव रहा होता तब, एंड फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिस वन, एंड फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट पीक वैल्यू विल बी आई नॉट एक्स एल. ऑल राइट, सो V naught is equals to I naught XL for purely it is capacitor, so I naught XC VC purely capacitive circuit. So making this in phasor diagram, जिन्हें पिछला नहीं समझ में आया है वो इसको ध्यान से देख लें कि कैसे बनता है, तो पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा. फर्स्टली मेक द करंट, जस्ट बिकॉज वी नो वेयर टू फाइंड द करंट. किसी भी एक डायरेक्शन में करंट की लेंथ थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, जिससे कि हम बाकी वैल्यूज़ को, चूंकि ईएमएफ बड़े लेंथ में यूज़ करेंगे, देन वी विल मेक इट लार्ज. दिस इज द पीक वैल्यू, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू, and the projection of the vector in this y axis
this y, this is x. This represents the इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अब देखिए हमको पता है एक R लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, I और VR दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं. सो हियर द VR विल बी शोन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन VR, ठीक है ना. और इसको हम V0R भी कह सकते हैं क्योंकि VR तो ये प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे जो होगा दैट इज VR, लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी V0R. तो मैं यहाँ VR ही लिख दे रहा हूँ, बट इसको प्रोजेक्शन यहाँ पे ये V0R इसकी लेंथ है, पीक वैल्यू. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट कैपेसिटिव सर्किट. एज वी नो इन कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज. अगर करंट लीड्स दी वोल्टेज है तो वोल्टेज इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि करंट के आगे एंटी क्लॉकवाइज वाले लीड करते हैं और क्लॉकवाइज वाले लैग करते हैं. जो राइट साइड में पड़ेगा वो लैग कर रहा है, जो लेफ्ट साइड में पड़ेगा वो लीड कर रहा है. तो करंट लीड करती है वोल्टेज से. देखिए इसको मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा. अगर आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर आप वेक्टर नहीं केवल उसकी लेंथ दिखाना चाह रहे हैं तो V0R लिखेंगे. ठीक है, तो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी I के 90 डिग्री लीड लैग करते हुए, क्योंकि I लीड कर रहा है तो कौन लैग करेगा, VC वेक्टर लैग करेगा, और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे होगी. दिस इज VC इंस्टेंटेनियस. सो दिस लेंथ इज एक्चुअली द पीक वैल्यू V0C. ठीक है, ये आप अलग से लिख सकते हैं यहीं पे ही. ये हो गई हमारी VC, और I और VC के बीच का एंगल कितना, π/2. करंट का एंगल मान लीजिए अभी हमको नहीं पता. अब देखिए EMF जो होगा इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड EMF विल बी द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VC, है ना, क्योंकि उसी दोनों को मिल रही है एनर्जी. तो EMF मान लीजिए इनका रिजल्टेंट वो पैरेललोग्राम थ्योरम से होगा, तो इस वाले को एक्सटेंड करिए, ये वाली एक्सटेंड, है ना. तो ये जहाँ पे इनका जो डायगोनल लाई करेगा इस पैरेललोग्राम का दैट इज E वेक्टर अप्लाइड EMF, और इसकी लेंथ क्या होगी E0. ठीक है, ये एंगल और करंट के बीच का एंगल, करंट और अप्लाइड EMF के बीच का एंगल हम क्या मान लिए, फाई. ठीक है, तो करंट और E कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी एंगल बनाता है ये E हमेशा ओमेगा टी एंगल विद द एक्स एक्सिस. सो द रिजल्टेंट I जो बनाएगा एंगल इससे वो कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई ना, ओमेगा टी प्लस फाई ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा हमारा करंट एक्स एक्सिस से. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हो गए. अब आप ध्यान से देखिए, यही हमने काम उसमें किया था, लेकिन वहाँ VL इधर था क्योंकि VL लीड करता है, उसमें करंट लैग करती है, और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करती है π/2 से. ठीक है, अब मैं इसको मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूँ. रिजल्टेंट E विल बी VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर. ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, VR प्लस VC, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले. ठीक है, तो ये हो जाएगा E0. पाइथागोरस कह सकते हैं या तो पैरेललोग्राम लॉ कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस एंगल में किसी भी एक एंगल में किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेना है. ये पैरेलल वाली लाइन ये यहाँ पे रख देना है, तो ये एंगल बीच का हुआ इनके कितना, फाई. ये और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, VC, जो कि VC और ये लेंथ पैरेलल है तो ये वाली भी VC का काम करेगी. सो जैसे मैंने वोल्टेज के लिए किया वैसे ही हम इनकी पीक वैल्यूज़ के लिए लिख सकते हैं. तो पीक वैल्यू विल बी रूट ओवर ऑफ, वी कैन से रूट ओवर ऑफ V0R होल स्क्वायर प्लस V0C होल स्क्वायर, where V0R and V0C are the peak values of potentials drop across R and C. So this is, इसको लिख सकते हैं I0R, इसको लिख सकते हैं I0XC. तो ये बन जाएगा I0 स्क्वायर आएगा दोनों में से, तो I0 स्क्वायर को बाहर लेंगे तो I0 बचेगा, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. सो I0 विल बी E0 अपॉन R स्क्वायर प्लस
एक्स सी स्क्वायर, और ये रूट ओवर में है ना. सो दिस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, देखिए करंट का एक्सप्रेशन मिल गया. सो द डिनोमिनेटर विल बी द रेजिस्टेंस सम काइंड ऑफ, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. क्या नाम देते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लें, और द इम्पीडेंस वर्ड यूज करते हैं, एंड डिनोटेड बाय Z. सो Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. ठीक है, ये इम्पीडेंस हो गया. तो Z को एक तरह से और लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू इम्पीडेंस, Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. हमने देखा, वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एज वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज. So this is the expression for impedance here, since xc is equals to 1 upon omega c. Now the phase angle between क्या था? phi. between किसके था? मैंने आपको बताया है, आप एक बार रिपीट करिएगा फिगर में. between voltage एंड करंट. कैसे निकालेंगे? tan phi इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में, आप फिर से मैं आपको दिखा दूं, इस ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये एक हो गया परपेंडिकुलर, ये एंगल हो गया हमारा phi, यहाँ से यहाँ तक करंट और EMF के बीच का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस ये वाला है, यानी परपेंडिकुलर VC V नॉट C एंड बेस V नॉट R. लेंथ ही तो पीक वैल्यू है ना. सो दिस इज V नॉट C अपॉन V नॉट R. सो दिस इज I नॉट XC अपॉन I नॉट R. इट इज XC बाई R. ऑलराइट, सो tan phi could be written as, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R. सो इट इज tan phi 1 अपॉन ओमेगा RC भी कहते हैं. ऑलराइट, नाउ द इंस्टेंटेनियस करंट, एज वी नो द करंट इज लीडिंग फ्रॉम द EMF. करंट आगे है, EMF पीछे है, विद एंगल phi. सो लीडिंग एक्सप्रेशन लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस phi. देख रहे हैं, यहाँ प्लस phi आ जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एन RC सर्किट. ऑलराइट, in next class we will study LCR circuit. Thank you.